Good evening, everyone. It is an absolute pleasure to welcome you all to this insightful session on 6 lessons with working with CXOs with none other than our esteemed alumnus Pratyush Bhatt. This session is brought to you by Alumni Relations and Entrepreneurship Initiative team of IIT Gandhinagar. We promise you an engaging and enriching experience as we uncover the key lessons from Pratyush's journey working with industry's best CXOs in the dynamic startup world. Now let me introduce the man of the hour, Pratyush Bhatt. Pratyush Bhatt is an alumnus of BTech Chemical Engineering batch of 2022 and currently holds the founder's office position at Solar Square Energy. Over the past 2 years, he has played a pivotal role in company's remarkable growth, helping Solar Square become one of the top 10 rooftop players in the world. His contributions have been instrumental in the company's success, with Solar Square now valued at rupees 1,000 crore plus, solidifying its position as India's #1 residential rooftop solar company. Having solarized more than 15,000 homes, beyond his corporate journey, Piyush has also been the founder of W2L Right to Lead, a venture that has successfully facilitated 5 crore plus worth of job placements. If that wasn't enough, he is also a published author with his book MBA, May the Boom Be Avoided, gaining significant recognition. His strategic expertise and leadership have contributed to Solar Square Energy, achieving 40 crore plus revenue in just 1 year. And today, he is here to share his invaluable experiences, offering insights into working closely with CXOs and navigating the ever-evolving energy sector. So, ladies and gentlemen, please join me in welcoming Pratyush Bhatt with an big round of applause. Thank you so much, Vansh, for the introduction. How are you all doing? Very good. Yes, no? Yes. जोर से बोलो यार थोड़ा. Yes. See, I tell you what, मैं ना renewable energy industry से आता हूँ. तो energy day India part and parcel of my life है. स्टार्टअप की दुनिया में वैसे ही हाई एनर्जी लोग रहते हैं, ओवर एंथुसियास्टिक. आई नीड सम एंथू फ्रॉम यू ऑल, एक्सपेक्टिंग दैट. और बताओ यार क्या चल रहा है? कोल्ड प्ले गए थे? कितने लोग गए थे? ऐसे ही नहीं टिकट नहीं हो, बस उठा देना यार. ट्रेड वर्ड कर रहे थे लोग, तो आप करवा देते इनका जुगाड़. बजट आया. हाँ, आज बजट आया. अच्छा बजट का है. वाह भाई, बजट का. सॉरी बोलिए आप स्टूडेंट्स हो. हाँ, तो मेरे को है ना बहुत फोमो हो रहा था. मैं ना कल कैंपस में आया, तब से लोगों से पूछ रहा हूँ यार कोल्ड प्ले कौन गया. आपके बैचमेट जूनियर सीनियर जो भी है मेरे से आके मिल रहे हैं. लाइक बाय द वे, हिंदी इंग्लिश बोथ ऑफ देम वर्क फॉर एवरीवन हियर. कोई भी कंसर्न? ठीक है, बढ़िया है. तो आई वाज जस्ट आस्किंग पीपल हाउ मेनी ऑफ देम अटेंडेड कोल्डप्ले's concert and all, क्योंकि I tell you honestly, I have a sibling, elder sister है मेरी, 4 साल बड़ी है. तो बहुत गालियाँ दी थी उसने मेरे को, यार तू कोल्ड प्ले क्यों नहीं गया. मैं बॉम्बे में रहता हूँ, स्टे इन वर्सोवा इन बॉम्बे, दैट्स अ कोस्टल एरिया इन वेस्टर्न बॉम्बे. बट ये कॉन्सर्ट इनका जो था, दैट वाज इन नवी मुंबई DY पाटिल स्टेडियम, दैट वाज फार ऑफ. एंड बॉम्बे ऐसा शहर है जिसमें डिस्टेंस है ना किलोमीटर में नहीं नापते, उसमें घंटों में नापते हैं. तो फिर मेरे को बहुत दूर पड़ रहा था, मैं गया नहीं. तो एंड ऑल्सो वो कोल्ड प्ले सालों पहले मैं सुनता था, तो टेस्ट भी थोड़ा चेंज हो गया. बट फिर मैं लोगों स्टोरीज देखे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे स्टेटस देखे, वो जैसे जो अच्छे दोस्त थे वो स्टोरी डाल रहे थे, बहुत अच्छे थे, वो जानबूझ के व्हाट्सएप पे मैसेज करके कॉल करके बोल रहे थे कि मैं तुम देख ये मिस किया मैंने. वो गया सब. और क्या चल रहा है यार? महाकुंभ गया कोई स्नान करने? छुट्टी नहीं मिलता. My parents were about to go, but फिर मैं unfortunately join नहीं कर पाया. I told them कि yet another IIT and महाकुंभ हो जाएगा. फिर मैं गया नहीं. Anyways, so anyways, this was just to kick this off. Career story शुरू. 6 lessons from working with CXOs. Should I unbox these lessons for you all? Yes. ठीक है, डन है. तो अगर आप मेरे से यही सवाल पूछते हैं, which I asked you the moment I stepped on the stage, कि how am I doing?
दिस वुड बी माई ऑनेस्ट रिस्पॉन्स। मैं ये नहीं बोलता बढ़िया है, ये एक्चुअली इतनी बढ़िया नहीं है। इस तरह का साइन में ऐसा कुछ है। शुरू करते हैं। जस्ट एडिंग सम मोर कॉन्टेक्स्ट। लेफ्ट बॉटम जो है, आई पुट नोट्स अक्रॉस द साइन वेव, क्रेसेंट रफ पूरा। लेफ्ट बॉटम इज माई फर्स्ट ईयर, टॉप राइट इज 2 to 3 months post my final year, 4 साल। As once mentioned, I passed out in 2022 chemical engineering में आना है। And तो फर्स्ट ईयर से शुरू करते हैं। This is semester 1, 6.45 CPI आई थी मेरी। And screwed up in what not, I would say। पढ़ाई सही नहीं जा रही थी यार। Then क्लब्स में था, सारे क्लब्स में ज्वाइन कर लिया था। हर किसी ने किया होगा। फर्स्ट ईयर वाले कितने हैं यहाँ पे? सेकेंड ईयर वाले कितने हैं? थर्ड, फोर्थ? ऑनेस्टली बताना, फर्स्ट ईयर में कितने लोगों ने सारे क्लब में एनरोल कर दिया था? कर दिया तो वापिस आता ऑलमोस्ट कितना है? 30-40% जनता है जितनी यहाँ पे बैठी है। तो मैं भी उनमें से ही एक था, मैंने भी सब में कर दिया। ठीक है, देखते हैं व्हाटएवर हैपेंस। बट कुछ भी काम नहीं किया, नथिंग वर्कड आउट। 6.45 CPI आई, एक भी क्लब में कुछ भी उखाड़ नहीं पाया। डांस में था, ड्रामा में था, और टेक में भी था, यू जस्ट नेम इट, मैं सब में ही था, बट कुछ नथिंग वर्कड आउट। म्यूजिक ओरिंडा भी किया था। आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ ओरिंडा। राहुल यादव है ना, वो इज द एक्स फाउंडर ऑफ ओरिंडा, आई वुड से। बहुत बनती है मेरी उनके साथ। ही इज लाइक डूइंग रियली गुड वर्क। रिसेंटली मेरे को पता चला यूनाइटेड नेशंस के साथ देयर इज अ टाई अप व्हिच ही हैज डन। ही इज वन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओवर देयर, सो गुड थिंग्स इज व्हाट ही इज डूइंग फॉर द कम्युनिटी। एनीवेज, नाइस। तो कमिंग बैक, म्यूजिक एक क्लब था जिसमें मैं था, एंड मेरी थोड़ी किस्मत चमकी थी, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ पे। आई टेल यू हाउ। लक फैक्टर था। There were 2 drummers who were selected for the band competition, जो इंटर आई टी कंट्रीट में हुआ था। IIT रुड़की में हुआ था हमारे टाइम पे। आई एम टॉकिंग अबाउट 2018, दैट इज एंड ऑफ माई फर्स्ट सेमेस्टर। एंड इसमें से ये 2 में से एक बंदा है ना, PhD का था, तो ही हैड टू अनफॉर्चुनेटली बैक ऑफ बिकॉज PhD होगा, मतलब कुछ हेक्टिक था उनका शेड्यूल। ही हैड टू टेक सम एग्जाम्स एंड ऑल, तो ही बैक ऑफ। एंड फिर मेरे को कॉल आया था। मेरा ना इंटर आई टी स्पोर्ट्स भी नहीं हो पाया था। आई यूज्ड टू प्ले बास्केटबॉल बैक इन कॉलेज। आई बीन अ स्टेट लेवल बास्केटबॉल प्लेयर, सिल्वर मेडलिस्ट। तो बास्केटबॉल खेलता था, बट ट्विस्टेड माय एंकल अनफॉर्चुनेटली। सिलेक्ट टीम में था। आई वाज आल्सो नॉट श्योर इंटर आई टी जा पाएंगे नहीं, बट एंकल ट्विस्ट की वजह से तो वैसे ही चांसेस ही हो गए, तो नहीं गए फिर उसमें। तो कल्ट में मेरे को मौका मिला। द कल्चरल सेक्रेटरी टोल्ड मी कि यार प्रत्युष, ऐसा ऐसा सीन है, देयर इज अ पोजीशन वेकेंट फॉर ड्रमर, यू जॉइन अस। I'm like okay, आता हूँ। एंड आई रियली एंजॉयड इट। बहुत मज़ा आता था मेरे को ड्रम्स बजाने में। मैं पूरा सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर बहुत ही ज़्यादा ड्रम्स बजाया है। एवरी सिंगल डे ट्यूटोरियल है, क्विज है, एग्ज़ाम है, डजेंट मैटर। 1 से 1.5 घंटा में ड्रम्स बजाऊंगा, मतलब बजाऊंगा, डजेंट मैटर व्हाट इज गोइंग ऑन इन माय लाइफ। मेरे को है ना रेपरकशन भी इससे मिले हैं थोड़े बहुत। मेरे को हॉस्टल केयर करके कॉल आ जाते थे। मैं 2-3 बजे तक बजा था रात में, इतना मज़ा आता था। मतलब देयर इज नोबडी अराउंड एंड आई जस्ट यूज्ड टू एंजॉय द ड्रम्स। मैं अकेला हूँ म्यूजिक रूम में। आई जस्ट पुट माय हेडफोन्स, प्ले द म्यूजिक एंड बिगिन विद व्हाटएवर आई वांट टू। तो हॉस्टल केयरटेकर कॉल मिश्रा है ना, केयरटेकर कौन से जे हॉस्टल के थे उस टाइम पे? तो कौन? मिश्रा जी। हाँ, तो उनका मेरे को कॉल आया था कि यार प्रत्युष, ये नहीं करना चाहिए, क्यों करता है तो ऐसा? बोला मेरे को खुशी मिलती है मिश्रा जी ड्रम्स बजा के। तो मिश्रा जी बोलते हैं कि यार दूसरों को दुख मिल रहा है इससे, उसका क्या? तो आई एम लाइक ठीक है मिश्रा जी, सॉरी, मैं 12 बजे से पहले बजाऊंगा, बट आई कैन नॉट गिव अप ऑन ड्रम्स। देन समथिंग हैपेंड, कोविड आ गया। तो एनीवेज म्यूजिक रूम वाज आउट ऑफ पिक्चर एंड घर पे ड्रम्स लाते तो पड़ोसी डांटते, तो इसलिए फिर वो सब हो नहीं पाया। फिर ड्रम्स ने फिर ब्रेक ले लिया मेरी लाइफ से। देन हैपन्स दिस रिसर्च पेपर थिंग। तो उस टाइम पे ना सेकेंड ईयर में बहुत ये हवा टाइप्स था हमारे बैच में भी। आपके बैच में होता है, आई डोंट नो, बट लोगों ऐसा था कि यार पब्लिकेशन कुछ
निकालते हैं खुद का, थोड़ी रिसर्च करके देखते हैं, थोड़ा इसमें एकेडमिया में घुस के देखते हैं कुछ, मतलब एज एन ऑथर वो प्राइड जो लेना था ना, दैट इज समथिंग विच अट्रैक्टेड पीपल। आई वाज आल्सो वन ऑफ देम। ईयर प्रेशर में मैंने भी सोचा कि यार मैं भी कुछ पब्लिश करूँगा, तो आई एंडेड अप विथ एन इंटर्नशिप सेकेंड ईयर, आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंड ईयर एंड। अब मार्च 2020 के अराउंड की बात है, मोदी जी ने लॉकडाउन अनाउंस ही किया था और मैं मिडसन ब्रेक में घर गया था और वो ब्रेक 10 महीना चला था। मेरे को पता नहीं था कि इतना लंबा खींचेगा ये। तो मैं इंटर्नशिप वगैरह में गया, आई वर्क विद अ विजिटिंग प्रोफेसर ओवर हियर, मैनेजमेंट का कोर्स ले रहे थे वो। तो आई पब्लिश्ड अ पेपर ऑन रिजुविनेशन ऑफ द इंडियन ऑटो सेक्टर, क्योंकि ऑटो सेक्टर एज एन इंडस्ट्री देखे ना बहुत सारे डाउनफॉल्स मिले यार। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट आईसीई वाला ऑटो सेक्टर, इंटरनल कंबशन इंजन, ईवीज वाला नहीं। तब तो ईवीज मेन स्ट्रीम नहीं था, आज भी इतना ज़्यादा नहीं है, बट ऑटो सेक्टर का ऐसा है 2008 में बहुत बड़ा रिसेशन हुआ था। द ग्रेट रिसेशन हैपेंड फ्रॉम द यूएस, रियल एस्टेट प्राइसेस क्रैश्ड, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया था ऑटो सेक्टर पे। 11-12 में वापस कुछ रिसेशन आया था, 14-15 में वापस आया था, 17-18 में वापस आया था, 20 में तो कोविड पैसा आ गए थे, तो मतलब हारे को हरे राम जैसा हो गया था ऑटो सेक्टर का। तो हमने ठीक है इस पर कुछ करते हैं काम। I published on strategies which the auto sector can adopt in order to revive. But क्या होता है, कोई पढ़ता नहीं, इसलिए I mentioned this as a book. Because who am I? मैं था 19 साल का बीटेक का लड़का। I am writing a paper for the auto sector and I am expecting कि इंडस्ट्री के जो भी दिग्गज लोग हैं, veterans है, CXOs है, वो लोग इसको पढ़ेंगे। It was not published in a very well-known journal as well. वहाँ पे भी I had a setback. Tried my best to improve on whatsoever I can within the publication after I received comments from the journal. But professor जो थे मेरे, he was also otherwise occupied. उनका consulting का खुद का business था, तो things didn't work out. So that was again low. फिर मैं सोचा कि यार let me dive into permanence. Research paper एक ऐसी चीज़ है ना कि लोग पढ़ेंगे, but it will pass on after a while. It's a transient thing, right? अच्छे जर्नल में पब्लिश करो, हार्वर्ड के जर्नल में करो या स्टैनफोर्ड के कोई जर्नल में करो, यू पब्लिश इन नेचर का कोई पब्लिकेशन, बट स्टिल ओवर टाइम सम ऑफ यू रिलेट जो भी एकेडमी में काम कर चुके हो, वर्क विद प्रोफेसर, स्टूडेंट कोर्सेज लिए हैं, तो बहुत सारे पब्लिकेशंस होते हैं, रिसर्च पेपर लाखों करोड़ों में छपते हैं, तो इट्स नेचुरली गोइंग टू बी अ ट्रांजिएंट थिंग। एंड ऑल्सो केम अक्रॉस दिस कोट समहाउ, कहीं पे तो पढ़ा मैंने कि यार if you want a permanent publication which stays with you forever, it is nothing other than a book. तो मैंने सोचा अब मैं बुक लिखूंगा, क्योंकि I want something which adds even more value to what this research paper was supposed to, as per my own understanding. तो कीड़ा है ना मेरे को इस चीज़ का ही था शुरू से कि यार मेरे को वैल्यू एडिशन करना है। I want to add immense value to the planet, to the country, to the state, to the city, whatsoever I come from. मैं थॉट बुक लिखते हैं, सोच रहा टॉपिक इस पे लिखते हैं, तो उस टाइम पे है ना वही है, वो पीयर प्रेशर वाले ही चीज़ें मेरे को ये प्रॉब्लम्स की तरफ ले जाती है कि यार ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम वैसे। तो ये पूरी जर्नी में स्टार्टिंग सम मोर कॉन्टेक्स्ट, जो मेरे आसपास प्रॉब्लम्स थे ना उसी के अराउंड आई वर्क अपॉन। बुक का भी ऐसा था, MBA पे बुक लिखी थी मैंने, टाइटल इज मे द बूम बी अवॉइडेड। MBA एस्पिरेंट्स बहुत थे हमारे बैच में, इंडिया में टोटल काउंट ऑफ MBA एस्पिरेंट्स, एनीवन वांट्स टू गेस कितना होगा? टॉकिंग अबाउट एस्पिरेंट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज हु हैव क्लियर्ड कैट, तो बहुत छोटा नंबर निकल के आता है। गेस इट, 10 लाख बहुत कम है यार। JEE मेंस 12 लाख बच्चे लिखते हैं, मेरे टाइम पे लिखते तब तो और ज़्यादा लिखते होंगे। आज ही सीतारामन जी ने अनाउंस किया है 6,500 सीट और बढ़ानी है IIT में, और लिखेंगे। कितने होंगे? 20-30 लाख, 80 लाख, 8 मिलियन। बैक व्हेन आई रोट द बुक, ये तब का स्टार्ट है। तो हम लोग यार बेसिक हिसाब लगा रहा हूँ, 80 लाख बच्चे कोई एग्जाम के लिए दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। मेरे को अगर वो 80 लाख का 1% भी मिलता है, 80,000, और मैं 300 रुपये की किताब छापता हूँ, 2.5 करोड़ रुपये तो कहीं नहीं गए। ये हिसाब लगा रहा था मैं। इट्स ऑल, प्लीज एक्सक्यूज माई लैंग्वेज, बुलशिट लॉजिक, बट दिस इज वॉट आई वॉज बैंकिंग ऑन। मैं सोचा यार ठीक है, अब इस टॉपिक को छेड़ते हैं। एंड आई वॉज ऑल्सो वेरी मच कन्विंस्ड विद व्हाटसोएवर इंटरेक्शंस आई हैड बैक देन विद माई बैचमेट्स एंड पीयर्स एंड बाकी भी जो भी लोग मिलते थे अक्रॉस बैकग्राउंड। आई हैव इंटरेक्टेड विद पीपल इंजीनियरिंग से एंड आर्ट से, कॉमर्स से,
जो भी कुछ भी कर रहा है, सबसे बात की थी, गॉट टू नो कि यार लोगों के रीजंस कैसे पता है MBA परस्यू करने के। यार नौकरी चाहिए, लड़की चाहिए, लड़का चाहिए, पापा को खुश करना है, मम्मी को खुश करना है, समाज को खुश करना है, सोशल स्टेटस चाहिए, ऐसा सब चल रहा है। बट इफ यू लुक एट MBA एज अ फंडामेंटल एजुकेशनल डिग्री, इट्स 2 years of rigorous management training. Agree? Yes, no? किसी का ये रीजन बैरली निकल के आता था। 80 लाख बच्चे, सोच रहे हो 80 लाख में से मेरा सैंपल है तो काफ़ी छोटा था, मतलब 40-50 के तो मुश्किल से इंटरेक्ट किया होगा, और उसमें भी मेरे को पूरा 1% भी नहीं मिला। 50% का 1%, 5 लोग, 5 से भी कम लोग मिले थे वो जेन्युइनली वांटेड टू परस्यू MBA क्योंकि एजुकेशनल डिग्री है। मैं सोचा इसी को छेड़ते हैं, तो आई रोट ऑन दोज थिंग्स विच पीपल शुड कंसिडर while going for an MBA. जॉब मार्केट में घुसना है, एंटरप्रेन्योरशिप में घुसना है, या फिर एकेडमिया में घुसना है, what should be the considerations in order to pursue MBA? एंड अगर वो सारी चीज़ें फेल हो जाती है कि उसमें से कुछ भी नहीं सूझता तुमको, तो MBA नहीं करना है, इफ दैट इज द कंक्लूजन, तो क्या करना है? व्हाट इफ नॉट MBA? तो दैट इज द फाइनल चैप्टर ऑफ माई बुक, वो लिखा। बट अगेन वो 2.5 करोड़ का हिसाब, सॉरी, डिड नॉट मेक एनी सेंस। सेल्स में आई स्क्रूड अप बिग टाइम। 100 कॉपी छपवाई थी मैंने, एंड 100 बिक गई। उसके बाद 20-25 और कुछ 1-1.5 साल पहले छपवाई थी, वो भी बिक गई। फॉर्चुनेटली आई हैव रिपीट रीडर्स जो कि मेरी किताब मेरे को जानने वाले हैं, जिन्होंने मतलब वर जस्ट अक्वेंटेंसेस 3rd डिग्री 4th डिग्री में भी, वो लोग के मेरे को बीच बीच में मैसेजेस आते रहते कि यार यू आर फीलिंग गुड रीडिंग अ बुक अगेन, और समझ में आ रही है चीज़ें, बट 100-150 बुक लिखी है। तो मतलब वो सोच रहे हो 2.5 करोड़ का नंबर कहाँ पर पहुँची है। दैट वॉज अगेन अ सेटबैक। फिर आता है सोलर थर्मल पे। तो आई एम टॉकिंग अबाउट 3rd year एंड टाइप्स, 3rd year मिड, 3rd year एंड जैसा कुछ। दिस वॉज माई फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू द रिन्यूएबल एनर्जी डोमेन विच आई एम करेंटली वर्किंग इन। सोलर थर्मल का जो प्रोजेक्ट है ना, दैट वॉज समथिंग विच आई परस्यूड विद प्रोफेसर्स हियर। सिविल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर है, प्रोफेसर उदित, इफ यू नो, उदित सर के साथ में काम कर रहा था। एंड there was also another professor who was in touch with him, Professor Raj from Clemson University. So we were working in tandem, and COVID था तो मैं Clemson जा नहीं पाया था in the US. I was working remotely. सोलर थर्मल पे काफ़ी काम किया है, worked on computational models and prototyping का सोच रहे थे एंड में, but again something went south, which is investment. तो मेरा जो कॉस्ट निकल के आ रहा था 9 लाख रुपए, that was like cost of goods sold जो बोलते हैं ना, बॉम्ब बिल ऑफ मटेरियल में टोटल लगा लूँ सब कुछ जो भी मैं यूज़ करने वाला हूँ, एक्सक्लूडिंग माई ऑपरेशनल कॉस्ट, सैलरीज एंड ओवरहेड्स एंड एवरीथिंग, 9 लाख रुपए पर किलोवाट वॉज द प्राइस। एंड आई वॉज डेवलपिंग समथिंग फॉर द रेसिडेंशियल इंडियन मार्केट इन द सोलर बिजनेस। सोलर PV का कॉस्ट जो है ना 40,000 से 70,000 75,000 पर किलोवाट में पड़ता है, एंड आफ्टर सब्सिडी दैट ट्रांसलेट्स टू 10,000 to 40,000। अभी जो गवर्नमेंट की सब्सिडी चल रही है तो सोलर PV प्रोजेक्ट फॉर द रेजिडेंशियल सेगमेंट। इसका मतलब है माई पर्टिकुलर वेंचर वुड हैव बीन लाइक 20x वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपेयर्ड टू द बेस कॉस्ट ऑफ द मेनस्ट्रीम टेक्नोलॉजी विच वाज सोलर। इसलिए इन्वेस्टर्स के पास में गया, बट नोबडी इन्वेस्टेड है। नेचुरल है यार, ROI नहीं दिख रहा, इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं दिख रही, कौन इन्वेस्ट करेगा? तो नो वन इन्वेस्टेड। फिर मैं सोचा कि यार मेरे को कुछ ऐसी चीज में घुसना है which is not like some big time thing. जैसे 19-year-old guy writing a research paper or a book or working on a like big, you know, gigantic solar system, वो सब काम नहीं कर रहा था. I thought कि let's start small. आसपास देखते हैं what are the problems people are facing. This is time frame अगर मैं बताऊँ 7 चल रहा था मेरा, and people are struggling a lot with job applications. आज भी वो कंसर्न है इंडिया में काफ़ी हद तक है for engineering graduates especially. I was like इस पे काम करते हैं कुछ, एंड बुक से एक चीज़ जो अच्छी हुई थी ना, आई गेन अ लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी एज एन ऑथर। मतलब लोगों को ये था कि यार ये बंदा लिखता तो अच्छा है, तो मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे, मेरे बैचमेट्स आते थे, जूनियर्स आते थे, यार बॉस रिज्यूमे सही करना है, आप मेरा कर दो। और मैं करता था हेल्प, काफ़ी लोगों की हेल्प की, एंड मैंने थॉट कि वो गुजराती वाला कीड़ा है ना यार, वो बंदा चमकता है थोड़ा बहुत, तो मैं सोचा इसको मोनेटाइज करेंगे। तो आई थॉट कि यार स्टार्टअप शुरू करते हैं, नो फंड्स, नो इन्वेस्टमेंट्स,
नो रजिस्टर्ड कंपनी, नो ट्रेडमार्क्स, बस प्रॉब्लम थी और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, फुल स्टॉप। इट वर्क वेल। स्टार्ट किया था मैंने जैन 2022 में। आई रैप्ड इट अप अराउंड अगस्त सितंबर। आई टेल यू द रीजन व्हाई आई रैप्ड इट अप। जैन में मेरा एक्स रेवेन्यू था ना, 6 महीने के अंदर आई वाज एट 10x, दैट गुड अ ग्रोथ। बट उसमें अगेन समथिंग वेंट साउथ। स्केल और पैशन दोनों मिसिंग था वो बिजनेस में। टेल यू हाउ। लोग है ना आ रहे थे, काफी लोग आ रहे थे, मेरे को मना करना पड़ रहा था कि यार अब मैं रेज्यूमे नहीं बना सकता, आई हैव अदर थिंग्स टू लुक आफ्टर, तो मैं नहीं कर सकता है। तो आई यूज्ड टू रिफ्यूज विद सैड फीलिंग कि यार मेरे को मना करना पड़ रहा है, बट ठीक है। एनीवेज आई एम डूइंग व्हाटसोएवर आई कैन एट माय बेस्ट। स्केल की बात करें ना, तो अगर आप देखो ये बिजनेस का नेचर, इंट्रिंसिकली इट्स सच अ बिजनेस वेयर इट्स डिपेंडेंट ऑन मी। मैं गया ना पिक्चर से तो राइट टू लीड गायब है। ऐसा बिजनेस टिकता नहीं है ज्यादा, क्योंकि यू हैव टू एंश्योर यू मल्टीप्लाई योरसेल्फ। मैं लोगों को ट्रेन करता, फिर बैरियर ऑफ एंट्री का लफड़ा होता कि पीपल वुड स्टार्ट देयर ओन रेज्यूमे बिजनेस, बट मार्केट इतना बड़ा था ना, मैं स्मॉल प्रॉफिटेबल एंटिटी बन के रहता, फिर भी चल जाता। व्हाई डिड आई नॉट डू दैट? पैशन नहीं था। राइटिंग मेरी स्किल थी, राइटिंग वाज नॉट माय पैशन। मेरे को ना थकान फील होती थी, 2-3 रेज्यूमे दिन के बनाता ना, उसके बाद आई वाज लाइक यार कुछ तो अब और सोचना है। ठीक है, आई एम एबल टू ऐड वैल्यू, आई एम एबल टू जनरेट मनी आउट ऑफ दिस, डिसेंट इनफ लाइफ इज गोइंग ऑन, बट मजा नहीं आ रहा है। कीड़ा है ना अंदर पैशन का, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। एंड बैक एंड में ना सोलर थर्मल कहीं ना कहीं दिमाग में था कि यार सोलर का बिजनेस जो है इट इज सो प्रॉमिसिंग इन नेचर। आई टेल यू डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर इज द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। व्हाई? क्योंकि इंडिया का पोटेंशियल जो है ना रेसिडेंशियल सोलर सेक्टर में, जस्ट टेकिंग अ डायग्रेशन शेयरिंग सब स्टैट्स, 600 गीगावाट का है, 600 गीगावाट्स। कैन यू इमेजिन? उसमें से लगा कितना है पता है? 3-4 गीगावाट। पीएम सूर्यघर जो स्कीम है जिसमें 1 करोड़ घर लगने वाले अगले 3 साल में, इज गोइंग टू टेक इट टू 30 ऑड गीगावाट। वो भी पूरा स्कीम 1 करोड़ घर के हिसाब से चला तो फिर भी कितना पोटेंशियल बचता है? दैट बिग अ मार्केट, उतना बड़ा मार्केट है वो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। इतना बड़ा दरिया है, जितने तैर सके उतने तैर ले, फिर भी वो दरिया खत्म नहीं होगा। इसलिए मेरे को उसमें घुसना था। एंड बिकॉज ऑफ दीज 2 रीजंस राइट टू लीड भी मैंने रैप अप किया। फिर डेलॉइट हैपेंस टू मी, 4th ईयर था, राइट टू लीड में मजा नहीं आ रहा था, तो आई वाज लाइक ठीक है अब जॉब मार्केट में घुसते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है। एंड आई वांटेड टू कीप इट टेंजेंशियल टू माय इंटरेस्ट इन द रिन्यूएबल एनर्जी डोमेन। डेलॉइट का ना कंसल्टिंग विंग इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड एनर्जी कंसल्टिंग में इट इज अमंग द टॉप 3 इन द वर्ल्ड। तो मेरे को इसलिए डेलॉइट का कीड़ा था। मेरे को डेलॉइट में फॉर्चुनेटली प्लेसमेंट मिल भी गया कैंपस से, बट आई वॉज हायर्ड इन क्लाउड इंजीनियरिंग डोमेन। जब मैं कंपनी का क्लॉज साइन किया ना, आई एंटर्ड द प्रेमिस ऑफ द ऑफिस एंड देन आई वाज सपोज्ड टू साइन द ऑफर लेटर। मेरे को पता चलता है कि यार 1.5 साल आई कैन नॉट स्विच। क्लाउड में हायर हुए हो तो क्लाउड में ही काम करना। दिस वाज द अनफॉर्चुनेट न्यूज़ टू मी। तो व्हाट डिड आई डू? छोड़ दिया डेलॉइट। 2 महीने टिका, मूव्ड ऑन। रिन्यूएबल में क्योंकि इंटरेस्ट था, फाइनली सोलर स्क्वायर हैपेंस टू मी। सोलर स्क्वायर जो है कैसे मिला एग्जैक्टली, आई शेयर लिटिल मोर ऑन दैट, बट दिस इज व्हाट माय 4 years of journey looks like. Coming to the 6 lessons for which we are here for. Lesson number 1 से अगर शुरू करें, lesson 1 is to understand the core. आप कोई भी बिजनेस करो, कोई भी जॉब परस्यू करो, whatever profession you are into, one thing which has to be ensured is कि फंडामेंटल्स जो है ना, अब जो भी इंडस्ट्री में हो, they have to be very very clear. I tell you, अगर वो नहीं करते तो डाउनसाइड क्या है? How many of you want to be software developers? 1, 2, 3. प्रोडक्ट में कितना घुसना है? आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट, हाँ प्रोडक्ट मैनेजमेंट, डिजिटल प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एप्स एंड ऑल। आप 1 फाइनेंस कंसल्टिंग कितनों को घुसना है? 2, 3, 4, 5। बाकियों की भी समथिंग, सम व्हाट प्रोफेशन इज व्हाट दे आल्सो वांट टू एंटर इनटू, राइट?
But I tell you the downside of not understanding the fundamentals of the industry you are getting into and then entering into all these domains. Typically क्या होगा? आपका मैनेजर आपको बोलेगा कि यार ये काम करना है, आप करके दे दोगे. मैनेजर वापस बोलेगा ये काम करना है, आप वापस दे दोगे. मैनेजर तीसरी बार बोलेगा, वापस दे दोगे. It's like सुबह दोपहर शाम आलू की सब्जी और रोटी. For whatsoever time you are into a company. नहीं कर सकता कोई भी इंसान एफिशिएंटली. आप अपने मैक्सिमम पे अगर डिलीवर करना चाहते हो ना, तो यू कैन जस्ट नॉट रिलाई ऑन व्हाट योर मैनेजर आस्क्स यू टू डू एंड कीप डूइंग थिंग्स. आपको बिजनेस समझना पड़ेगा, एटलीस्ट फंडामेंटल्स ऑफ द बिजनेस समझने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू डिसाइड यार ठीक है मेरे को ये प्रॉब्लम परस्यू करनी है. I will be telling my manager to let me work on this because this is the impact of the business in the company and eventually इतना अपना revenue बढ़ेगा, इतना bottom line बढ़ेगा, इतना OPEX कम होगा, overheads कम होगा, जो भी है. So which is why understanding the core is very essential and I did the exact same thing for the first 2 years at Solar Square. मेरे को almost 2.5 साल हो गया है, आज भी कर रहा हूँ. 2 days ago I was at a factory in Dholera which manufactures solar PV modules. Because modules हमारा fundamental, that's the bread and butter of our business. मैं प्लांट लगाता हूँ पूरा का पूरा जिसमें the costliest component and the most essential component, the heart of the system is the solar PV module. And that's why I keep visiting factories just to know कि industry में चल क्या रहा है, how is the industry progressing, what are the fundamentals which I have to be aware of. And ये जब solid foundation आपका figure out हो जाता है ना, that is when you should decide to chase the depths. I visited over 20-25% of the total manufacturing capacity of India. 15 gigawatt से ऊपर की lines मैंने देखी है in the 2 years at Solar Square. And this has helped me big time because now I'm able to tell my entire supply chain team कि boss, this is what is going wrong in the module industry. You figure that out. China से ये material आने में इतना time लगेगा because Chinese New Year is going on. There is this anti-dumping duty being applied. All of that. You take care of the supply chain. टेक टीम को मैं बोल पाता हूँ कि यार मॉड्यूल में दिस आर द चेंजेस व्हिच आर कमिंग. दिस इज व्हाई यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट एंड हमको हमारा बिजनेस उस हिसाब से थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा. फाइनेंस टीम को बोल सकता हूँ कि प्राइसिंग में ये चेंजेस आ रहे हैं, दिस विल बी अ हिट ऑन आवर मार्जिन्स. ऐसे चेंजेस वी हैव टू टेक केयर ऑफ एंड वी हैव टू इंक्रीज द प्राइस टू द कस्टमर. देयर आर जस्ट अ फ्यू एग्जांपल्स व्हिच आई एम एबल टू ड्राइव बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि चल क्या रहा है इंडस्ट्री में, व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ दिस बिजनेस. एंड उसके बाद यू कैन गो फॉर द डेप्थ्स. तो there is nothing wrong in the initial stage of your career at least कि आप jack of all trades बनो, then you get into being master of one. और ये आउटकम जो है ना, ये पूरी एक्सरसाइज करने का वो फाउंडर्स ऑफिस रोल था विच आई गॉट. 1.5 साल है ना मैं पुणे में रहा था विच इज आवर ब्रांच ऑफिस. मेरे को कंपनी के फाउंडर ने बोला यार प्रत्युष तू बॉम्बे आ जा, बहुत हो गया पुणे में. I know that you are limiting yourself on the exposure you can potentially get if you sit in the head office. हमारा head office is in Bombay, Andheri East. So then I got this role. So this was the outcome of just being aware of the core dynamics of the business. And सिर्फ ये solar PV module की बात नहीं कर रहा, मैं exactly उसी डेप्थ तक इन्वर्टर्स में भी घुसा हूँ. आज मैं exactly उसी डेप्थ तक बैटरीज में भी घुस रहा हूँ. I am hitting bits and pieces of R&D at the company as well. And सेम साइंस अप्लाई करके आई एम एबल टू डिलीवर द सेम वैल्यू टू द कंपनी बिकॉज आई नो हाउ टू अंडरस्टैंड द कोर ऑफ द बिजनेस. आई एम नेक्स्ट इज क्वालिटी. ये जगह गेस करना कोई. आई डोंट नीड द नेम ऑफ द प्लेस, आई जस्ट नीड क्या प्रेमिस है, ये क्या जगह है, व्हाट कुड बी दिस पर्टिकुलर प्लेस. गेस करो. तुक्का मार यार. लोढ़ा. हाँ लोढ़ा. सॉरी लोढ़ा रियल एस्टेट. नहीं यार. आपका ऑफिस. नहीं भाई, नॉट सो इजी. जेई का एग्जाम नहीं यार, उसमें तुक्के नहीं मारे थे, बाकी एग्जाम में मारे होंगे ना. रैंडम गेस करो. ठीक है, एनीवेज बताता हूँ. I was on a business trip to Shanghai in the month of June last year. It's a Michelin star restaurant in Shanghai. Michelin star पता है किसी को? You want to share what it is? They rate the hotels and restaurants. It is very credible. Right. तो Michelin star जो है
It's an initiative by Michelin company which is into tires. And उनको है ना ये रेटिंग करनी थी for the best restaurants globally. And they have done this for almost every major country. As a matter of fact, इंडिया में आज की तारीख में 0 Michelin star restaurants are there. उस लेवल पे उनका बाहर है. And the restaurant I'm talking about is called Fu He Hui. That's in Shanghai. This is the 19th best restaurant in Asia. ये रेस्टोरेंट की खास बात ये थी ना कि खाना, if I tell you honestly, it was not that tasty. आपको कोई भी स्ट्रीट फूड वेंडर के पास कहीं ज़्यादा टेस्टी खाना मिलेगा. But the only thing they were banking on was quality. Product and service दोनों में. The way they served the food, the way their floor manager talked about the food, distinguished them. I tell you थोड़ा सा और बता दो क्या हुआ था. मिशेलिन स्टार का और एक यूएसपी कि आला कार्ट नहीं होता. आप जाते हो, आप बोलते हो इडली चाहिए तो इडली मिलेगी, डोसा चाहिए डोसा मिलेगा, वैसे नहीं होता है. शेफ डिसाइड करता है क्या खिलाना है उनको, कस्टमर को. एंड हर मिशेलिन स्टार की स्पेशलिटी ये है कि वो कुछ फ्रीक्वेंसी के बाद ही मेन्यू चेंज करते हैं. जैसे इसका ये था कि these people ensured कि सीजन वाइज चाइना में जो कल्टीवेशन होता है वहाँ से बेस्ट सेट ऑफ इंग्रेडिएंट्स आर प्रोक्योर्ड एंड देन दे मेक डिशेस आउट ऑफ इट. तो इसका हर 3 महीने में मेन्यू चेंज होता है. मैंने बोला सीजन चेंज एंड जून वाज लाइक ऑलमोस्ट एंड ऑफ समर्स इन शंघाई. तो 3 महीने से जो फ्लोर मैनेजर है सेम चीज एक्सप्लेन कर रहा था टू एवरी सिंगल गेस्ट इन द रेस्टोरेंट. एंड 7 days a week ये रेस्टोरेंट फुल ही रहता था बिकॉज इट्स अ मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट. He tells us कि ये जो डिश है बारी बारी डिशेस लाते हैं. 11-12 डिशेस थी. Once you finish one dish, they get another, and then another, then another. 3-4 there were teas as well, special Chinese teas. He used to tell us, I mean, he was telling us back then कि यार ये जो डिश है इसका ये इंग्रेडिएंट यहाँ से आया है. आपको टंग के आगे के पार्ट में ये टेस्ट फील होगा when you have this. टंग के बीच वाले पार्ट में ये टेस्ट फील होगा, टंग के पीछे वाले पार्ट में ये टेस्ट फील होगा. एंड एग्जैक्टली यही हो रहा था. एंड इतना पैशन से बोल रहा है ना वो बंदा, उसको इतना इंटरेस्ट है खाने में. इट वाज लाइक 3 to 4 hours which we spent over there just discussing about life and other things. I was there and 2 of my managing directors of the company were there. हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे यार कि what the hell are we 19th best at in a continent as big as Asia. Why is Fu He Hui standing out as a restaurant? क्या है ऐसा exceptional? The crux of our discussion was quality. So, time and again, I keep telling this to people कि no matter what you do, quality of your work should never be compromised. कम चीज़ें करो, कम चीज़ें उठाओ, but you ensure that you deliver at your best and ensure कि quality is not compromised. इसका अगर outcome मैं आपको बताऊँ ना, almost every single VP in my company wants me in their team. मेरे को VP ऑफ सप्लाई चेन ने 1 महीने पहले कॉल किया था. इज लाइक यार प्रत्युष तू मेरी टीम में आ जा, मेरे को सप्लाई चेन में बहुत कुछ सॉल्व करना है. VP ऑफ आवर रेसिडेंशियल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बिजनेस टेल्स मी यार प्रत्युष तू सेल्स में आ जा. यू हैव डन 40 CR ऑफ रेवेन्यू इन 1 year, ग्रेट थिंग. सेल्स में काम करते हैं. नेशनल बिजनेस हेड ऑफ B2B सेगमेंट टेल्स मी मेरी टीम में आ जा. C&I हेड कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेटअप जो होते हैं उसका बिजनेस हेड टेल्स मी मेरी टीम में आ जा. बट मैंने किसी के साथ भी कुछ अलाइनमेंट किया नहीं. आई वाज वर्किंग विद वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द कंपनी, डिड नॉट वांट टू डिच इट. तो आई डिड नॉट डू दैट. बट दिस इज व्हाट क्वालिटी रिजल्ट्स इनटू. बिकॉज दे न्यू कि यार ठीक है इस बंदे को भले ही आज की तारीख में इसको 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस है, सब कुछ पता नहीं होगा, बट द वे ही हैंडल्स हिज वर्क, द क्वालिटी एट व्हिच ही डिलीवर्स इज एक्सेप्शनल. इसलिए दिस थिंग हैपेंड. Fu He Hui का बस मतलब बता रहा हूँ जस्ट फॉर नॉलेज. Who is happiness? Who is wisdom? Quote पढ़िएगा. The process of pursuing happiness leads to wisdom, and the pathway to wisdom is accompanied by happiness. अगर इसको लिंक करूँ ये आइडिया से, तो what this means is either you pursue happiness or you pursue wisdom. Quality is something which you should never compromise with. तीसरा है समय, टाइम. Pareto's principle पता है किसी को क्या होता है? Pareto's principle. Anyone's heard of it? 80-20 rule. Anyone wants to share? You want to share? So, it has been told that like 80% of your work will be done in
Exactly. यही होता है Pareto's principle. 80% of your work happens in 20% of the time. ये जगह गैस करो. Another restaurant. नहीं भाई, इतना भुक्खड़ नहीं हूँ मैं. इंडिया है, मुंबई है, मुंबई एयरपोर्ट के पास है. गैस इट. मुंबई डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास है. Sahara. हाँ? Sahara. Bangkok, Sahara. This is Sahara Star Hotel. I visited this hotel 10 to 12 days back. I was here for a meeting with a real estate developer. उनके टीम से मिलना था, CEO and MDs and all of them were there. Almost on the verge of closure है. जो शूटिंग हो जाएगी 2 दिन में आ जाना चाहिए. Big project 8-10 करोड़ की वैल्यू है इसकी. And इसमें ना मेरे 6 महीने गए. 6 months. Because इसमें battery was introduced for the first time ever in our business. In multi-megawatt hour scale battery चाहिए इनको. That is a need in order to maximize their savings. But since मेरे लिए and मेरी कंपनी के लिए बैटरी नया है तो मेरे को काफ़ी टाइम लगा था in order to get into nuances. And the consultant they had onboarded was the Infosys Sustainability Roadmap driver. उन्होंने 2000 करोड़ का Infosys का Sustainability Roadmap drive किया है. And he has published a white paper through which, if you refer to it, आप कोई भी कैंपस को fully sustainable बना सकते हो. तो उस लेवल का उनका mental state था. And I was someone who is very nascent to this battery business. तो मेरे को काफ़ी टाइम लगा था इसमें. But as I told you, founders office में मेरा रोल है. उसमें क्या होता है कि I closely work with one of the founders and execution end to end वो सारी चीज़ों का product, quality, tech, R&D, supply chain, B2B business पूरा ये सब drive करना पड़ता है. Being in this role, and I was not getting adequate time for the rest of the things because this took a lot of my time. यहाँ मैंने सीखा how do you manage your time well. 80-20 लगा था. I just used to decide कि यार मैं ये 3 चीज़ों से ऊपर कुछ भी नहीं कर रहा आज के दिन में. मैं वो 3 चीज़ों को एक पे ले आया हूँ अभी. Because I do not want to get the quality of my work going for a toss. तो इसलिए 3 का 1 पे ले आया. 365 काम नहीं कर पाऊंगा मैं साल में अगर 3 का 1 पे ले आया. मैं 122 कर पाऊंगा. That's okay for me. I am fine taking 3 days for some task and doing it in one go, just by ensuring कि मैं वो 3 दिनों के लिए बस एक ही टास्क अपने दिमाग में रखूं. And 122 is also very big number. Just a ballpark, but still बहुत होता है एब्सोल्यूट टर्म्स में. अगर देखो 122 अच्छी चीजें करना इन अ ईयर इज मच बेटर देन 365 ठीक ठाक कर लेना. एंड बाकी सब व्हाट आई रियलाइज्ड इज नॉइज. प्रायोरिटाइजेशन जो है ना इसमें मेहनत जाती है. मैं हर दिन रात को डायरी लेके बैठता हूँ टू डिसाइड व्हाट एम आई गोइंग टू वर्क ऑन द नेक्स्ट डे. एंड जितना कम चीज़ों पे मैं फोकस करता हूँ उतना ही टफ होता है वो लिखना कि मैं कौन सी चीज़ पे फोकस करने वाला हूँ. But once I'm done with this exercise, I actually realize कि बाकी सब actually noisy है. That does not matter to me as much as this one particular thing at this point in time matters. That is what I apply. And money is something which won't matter to you once you start living a decent enough lifestyle. बाद में ना आपको जो time और energy की value होगी would be much higher than what you would value money at. Which is why these are networking because मेरे को पता नहीं है कि कौन मेरे को क्या काम करने वाला है. एंड मेरे को पर्सनली हेल्प करना है. मेरे को आगे जाके कुछ और करना है. मेरे को बिजनेस सेटअप करना है या अनदर बिजनेस फॉर मी और एल्स वांट टू गेट इन सम प्रोफेशन सम जॉब. तब भी ये मेरे को हेल्प करेगा बिकॉज आई एम मैनेज. एंड मीटिंग न्यू पीपल हैज वन मोर एडवांटेज अदर देन द प्रोफेशनल बेनिफिट व्हिच इज यू कीप मीटिंग नोवेल माइंड्स. आपको है ना 1000 लोग मिलेंगे उसमें से मेबी 100 थोड़े से काम के होंगे. उसमें से मेबी 50 थोड़े से और काम के होंगे. 10 उससे भी ज़्यादा काम के होंगे. एंड 5 जो है दे वुड जेन्युइनली ऐड इमेंस अमाउंट ऑफ वैल्यू टू योर लाइफ. द रेशियो इज वेरी लेस 0.5%. बट ये 1000 लोगों से मिलके व्हाट यू हैव लर्नड इज यू लर्न टू वीड आउट द पीपल हु आर नॉट रिलेवेंट फॉर यू. वो चीज़ सीखते हो व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमंस. एंड अंडरस्टैंडिंग ह्यूमंस इज सो इम्पॉर्टेंट. आप सोचो मैं बिजनेस ओनर हूँ तो मेरे को कस्टमर से इंटरेक्ट करना है, मेरे को इन्वेस्टर से इंटरेक्ट करना है, मेरे को मेरे बिजनेस पार्टनर से इंटरेक्ट करना है. आई हैव टू अंडरस्टैंड ह्यूमंस फंडामेंटली.
लोग बोलते बहुत कुछ है, टोपी पहनाने वाले बहुत है दुनिया में, बट मैं अगर इतने लोगों से मिलता हूँ ना, आई कीप कैप्चरिंग दोज नॉन वर्बल एक्शंस, दोज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्यूज। यार ये इंसान ये सही बोल रहा है, ये फेंक रहा है, दिस इज गोइंग वेल, दिस इज नॉट गोइंग वेल, इसके साथ काम करना है, इसके साथ नहीं करना। दैट अंडरस्टैंडिंग इज समथिंग वी शुड डेवलप थ्रू नेटवर्किंग। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ। ऑब्वियस चीज है, लोग अटकते कहाँ है वो बताता हूँ। दिस इज अ पाई विच शोज की मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट जो है आप खुद में करो। तो डार्क ब्लू सेक्शन, ब्लू या राइट, आई हैव सम सॉर्ट ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, जस्ट चेकिंग। ब्लू, डार्क ब्लू। वाइट जो है दैट इज इन्वेस्टमेंट इन अदर्स। ब्लू इज आप खुद में मैक्सिमम डालो, वाइट यू इन्वेस्ट इन योर लव्ड वंस, आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स है, मेंटर्स है, whosoever it is, and the smallest chunk is others, third party, दूसरों में डालो, सोसाइटी में डालो। This is the ideal investment portfolio, non-financial investment portfolio, I would say. But the requirement over here is to be the lion's shareholder in this investment portfolio for yourself, because जब तक आप खुद में adequately इन्वेस्ट नहीं करोगे ना, यू वॉन्ट बी एबल टू इन्वेस्ट एडिक्वेटली इन अदर्स। खुद में इन्वेस्ट करके व्हाट यू गेन इज कि व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डज नॉट वर्क, जो काम करेगा एंड जो काम नहीं करेगा, यू विल बी एबल टू शेयर दिस विद अदर्स, प्रोवाइडेड दैट यू हैव वर्कड एडिक्वेटली अपॉन योरसेल्फ, तभी दूसरों की लाइफ में वैल्यूएट कर पाओगे। एंड काफी लोग ये भी पूछते हैं मेरे से कि ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन माई सेल्फ इज ओके, बट how do I figure out what to invest in? कहाँ से शुरू करें? For that, I just tell them one thing: listen to the universe. आपको ना साइंस मिलता है। जब तक आप जिस चीज में भी you are screwing up, अगर उसको ठीक नहीं करोगे ना, you will keep getting those cues from sources, various sources. यार ये सही नहीं जा रहा। मेरे साथ होता है, अभी हुआ था रिसेंटली कि वो जो सहारा स्टार वाली मीटिंग का मैंने बताया ना, उसमें डिस्कशन वॉज वेरी वेल। दो वीपीज गए थे, मैं गया था, वन ऑफ द एमडीएस जॉइंड अस। वीपी का वन ऑफ द वीपीज गिव मी फीडबैक कि प्रत्युष बहुत सही काम किया था, अच्छे से प्रेजेंट किया है, बट डिस्कशन वॉज गेटिंग अ बिट टू टेक्निकल। थोड़ा सा वो, क्योंकि सामने वाला बंदा सीईओ है, सीईओ इंटरेस्टेड इन हाई लेवल पिक्चर, उनको ग्रैनुलरिटी ज़्यादा हुक नहीं करती, उनको ये देखना है कि क्या दे रहे हैं सोल्यूशन हमें, एंड व्हाट इज द आरओआई, डिफरेंट ब्रेक इवन पीरियड, क्या है, इन्वेस्टमेंट कितना लगना है, दीज हाई लेवल नंबर्स इज व्हाट दे वांट। एंड ये फीडबैक जो है मेरे पास मेरे और चीज़ों में जो काम कर रहा था वहाँ से भी आ रहा था। वन ऑफ फाउंडर्स आल्सो टोल्ड मी दिस थिंग, यार प्रत्युष सिंप्लीफिकेशन पे थोड़ा ध्यान दे, यू सिंप्लीफाई थिंग्स, चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती है, वी अंडरस्टैंड, बट सिंप्लीफाइंग इट इज टफर देन मेकिंग देम टफ एंड प्रेजेंटिंग इट एज इट इज। सो आई फिगर्ड इट आउट कि यार मेरे को बार बार ये चीज़ सुनने को मिल रही है ना, तो समथिंग इज रॉन्ग एंड आई शुड वर्क ऑन दैट। एंड इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल है, तुमको ये साइंस मिलेंगे, तुम उस पर काम करना चालू कर दो। यू डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस कि यार मैं इस पर काम करूँगी नहीं। काफ़ी जगह से बार बार तुमको सुनने में आएगा, मे बी तुम सर्च करोगे गूगल पे, यू स्टार्ट गेटिंग इंस्टाग्राम रील्स, कुकीज आर सो स्मार्ट दीस डेज। मेरे साथ भी हुआ है, मैं आर्टिकुलेशन पे सर्च कर रहा था, मेरे को एक्चुअली रील्स आने लग गई थी। तो लेवरेज दैट एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन व्हाट यू आर नॉट गुड एट। सॉल्व द राइट प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स कितने लोगों की लाइफ में इधर? टू जनरेटेड क्वेश्चन राइट, सबकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है दुनिया में, अनेक प्रॉब्लम्स हैं, इतने इंसान भी नहीं होंगे ऐसे, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। बट पिकिंग दोज प्रॉब्लम्स विच आर वर्थ सॉल्विंग फॉर यू, विच आर रिलेवेंट टू यू, इज योर जॉब। कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करे ये फिगर आउट करना इज ईजियर दैन कौन सा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करना है। ऐसा कुछ सिनेरियो रहेगा, आपके पास दो ही हाथ है, अब 4 हाथ जितने बॉल्स उठा लोगे एंड यू कीप जगलिंग, हाई चांसेस सारे के सारे गिरने वाले हैं। एंड वन थिंग विच पीपल डू while assessing the problems to work on is taking them personally. मैंने खुद ने किया है कि मैं ना दिल पे ले लेता हूँ चीज़ें कि यार नहीं यार ये तो मेरे को कैसे करके सॉल्व देना है, मतलब मेरे को दिखता है कि यार ये प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व होनी है, तो मैं क्यों इसको ना करूँ। बट द मोमेंट आई स्टार्ट डूइंग दैट, I end up into the overachiever segment.
ओवर अचीवर बनना इज रिस्की. आई वुड नॉट रिकमेंड एनीवन टू बी एन ओवर अचीवर. उनका है ना सबसे बड़ा फ्लॉ ये होता है कि वो थकते बहुत जल्दी है, बिकॉज दे पिक एवरी सिंगल थिंग टू सॉल्व फॉर. उनको सारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करनी है, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ना. एंड दैट इज वेयर दे स्ट्रगल विथ बैंडविड्थ, जो कि वो सही प्रॉब्लम्स जेन्युइनली मैटर टू देम, व्हिच जेन्युइनली अलाइन टू देयर गोल्स, उसको सॉल्व नहीं कर पाते. एंड दे कीप स्प्रेडिंग टू ब्रॉडली. मतलब छोटे छोटे प्रॉब्लम्स इतने सॉल्व कर देते हैं, बट इफ यू आस्क एन ओवर अचीवर कि तुम्हारा एक्सपर्टीज क्या है, आई बेट पहले तुमको जवाब मिलेगा. वो बोलेंगे मेरे को ये आता है, ये आता है, ये आता है, पर सब कुछ उतने अच्छे से नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है. तो दिस इज व्हाट डिफरेंशिएट्स पैशनेट पीपल एंड ओवर अचीवर्स. यू फोकस ऑन व्हाट प्रॉब्लम्स यू वांट टू सॉल्व फॉर एंड देन गो फॉर इट रादर देन डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एट वंस. साइंस ऑफ बैंडविड्थ जो है क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बैंडविड्थ. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सबको पता है. Energy can neither be created nor be destroyed. It can only be converted from one form to another. Bandwidth भी यही कहता है. Bandwidth can neither be created nor be destroyed. You can only invest it in one thing or the other. So be mindful of this fact. Limited time है. You decide what you want to allocate it on. Bonus lesson में 6 lessons हो गए. Bonus is this. Yes करो. वो तो ठीक है, वो तो सब जानते हैं. लेसन क्या है? फैक्ट सही है, but that's not the lesson. Adaptation. नहीं. हिंट देता हूँ. हाँ? हिंट देता हूँ. Humans are at the top of the food chain. सब मानते हैं. Homo sapiens rule the world. हमारी दुनिया चला रहा है. क्यों है ऐसा? Survival of the fittest, yes. What made us so fit? We always try to be better than what we were. और लोग भी करते हैं. That is adaptation basically. You try to be better than what you are. Curiosity. Curious रहना. Curiosity भी ठीक है, but ऐसे तो सारे ही अपन काफी हद तक कुछ ना कुछ चीज में curious है. You think that would? हाँ? Intelligence is again debatable topic. Ants have bigger brains than humans. Ants हमारे से ज़्यादा intelligent होती है. Consciousness इतना इवॉल्व नहीं किया है कि Homo sapiens as a species rule कर पाए. Consciousness is there, no doubt. मैं major aspect पूछ रहा हूँ. One of the contributors to consciousness I agree. Sapiens पढ़िए किसी ने? Yuval Noah Harari's book. Nobody has read it. पढ़ो. वो बंदे से अच्छा हिस्ट्री कोई नहीं समझा. मेरे को हिस्ट्री बिल्कुल नहीं पसंद एज अ सब्जेक्ट, बट जिस तरीके से वो बंदे ने समझाया ना कि यार ह्यूमंस ऐसे इवॉल्व हुए, दैट इज माइंड. हमें एज अ स्पीशीज विच इज ऑन टॉप ऑफ द फूड चेन, ये बनाने वाला एक मेजर फैक्टर है कोलैबोरेशन. वी आर सोशल एनिमल्स. के आसपास देखो, कुर्सी पे बैठे, सामने टेबल रखा है, इनके पास लैपटॉप है, कैमरा है, जैकेट, टी शर्ट, जीन्स, शूज, वॉच, परफ्यूम. मैंने खुद ने तो नहीं बनाया सब कुछ, मैंने खरीदा है. IIT ने भी खरीदा है. द मोमेंट एवरी सिंगल ह्यूमन स्टार्ट्स बिहेविंग इंडिविजुअली एंड नॉट एज अ सोशल एनिमल, ड्रॉबैक क्या होगा? मैं खुद का ही गेहूं बोऊंगा, मैं उसी को रीड करूंगा, मैं उसी की रोटी बनाऊंगा और उसी को खाऊंगा. मैं खुद का ही कॉटन भी आई सो, आई रीड दैट कॉटन, आई मेक क्लोथ्स आउट ऑफ इट एंड देन आई वेयर. तो मेरे को उन चीज़ों के लिए तो टाइम मिला ही नहीं है जो मेरे को करना है. दिस इज द साइंस ऑफ कोलैबोरेशन. वी आर अ सोसाइटी, वी आर बाय डिफॉल्ट सोशल एनिमल्स, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स विच मेक अस सक्सेसफुल एज अ स्पीशीज ऑन प्लैनेट अर्थ. इसका रेलेवेंस बताता हूँ क्या है. सपोर्ट सिस्टम्स जो बोलते हैं ना कि सही लोग अपनी लाइफ में रखो in order to evolve better. सोसाइटी जिस तरीके से इवॉल्व हुई है ना, उसी तरीके से इंडिविजुअल्स भी इवॉल्व होता है. जंगल बुक देखा है मोगली सबने? उसमें कोट है एक, द स्ट्रेंथ ऑफ द पैक इज द वुल्फ, द स्ट्रेंथ ऑफ द वुल्फ इज द पैक. वी आर डिफाइंड बाय द पीपल वी सराउंड आवरसेल्व्स विद. और एक कोट है, you are the average of the 5 people you usually play around, something like that.
इसलिए इट्स वेरी वेरी एसेंशियल टू हैव द राइट स्टेक होल्डर्स इन लाइफ एंड यू हैव टू डिसाइड स्टेक्स फॉर देम. स्किन इन द गेम किसका कितना होना चाहिए ना आपकी लाइफ में, इट इज ऑन यू टू डिसाइड. अनकंडीशनल इन्वेस्टर्स ढूंढो. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? व्हेन आई चूज पीपल इन माय लाइफ, फ्रेंड्स है या मेंटर्स है, उसके वजह से फैमिली तो बाय डिफॉल्ट ही है जो भी है, मैं ये देखता हूँ कि इसमें से कितने ऐसे हैं कि पुट प्रत्युष भट्ट as a professional in the solar industry doing good this that book लिखे research paper लिखा सब कुछ aside, सब हटा दो. God forbid everything goes south and I am at zero. I want to start again. कितने लोग मेरे साथ में रहेंगे उस time? How many of them are unconditionally with me, who genuinely love me? They are actually the real investors in your life. ऐसे लोग हैं, superficial नहीं. इंस्टाग्राम पे हजारों लाखों फॉलोअर्स होते हैं लाइक यार लोगों के, बट वही लोग काउंसलर के पास जाते हैं, वही लोग स्ट्रगल करते हैं, they want to share things which they want to, प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाते, they get depressed, anxious, सब कुछ होता है. क्यों? क्योंकि सही लोग नहीं उनकी लाइफ में. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस, switch gears. Very very difficult, very very easy to say but equally difficult to do. गलत लोगों को weed out करना पड़ेगा if you want to achieve big things. जो भी आपकी ग्रोथ के लिए कंड्यूसिव नहीं है, you will have to take this step and weed them out from lives. Ideal support system as I mentioned मेरे लिए तो यही है. फैमिली है मेरी, फ्रेंड्स है कुछ गिने चुने, एंड मेंटर्स है. I am not that socially active as a person, social animal नहीं हूँ. I am not a party animal. I don't keep visiting like clubs and restaurants and all that for fancy things on and off. But I ensure that I am there for those people who are for me all the time. Summary एक बार अगर देखें सबकी, तो do not miss out on the basics. Quantity पे कुछ भी compromise मत करो. Value your time essentially. Networking can't emphasize that enough. Investment in yourself. Taking the right problems to solve and building your support systems. अब इसका आउटकम क्या है? मैंने जर्नी बताई 4 साल की, मैंने इतने लेसन बताए 6-7 जो भी थे. What did I achieve out of this? सब कुछ जो भी किया, मेरे को समझ में आया मेरे को करना क्या है, doing all of this. बट काफ़ी लोगों ने मेरे से ये पूछा है, मतलब पोस्टर फॉर द स्टॉक हो जाओ, लोगों ने मेरे को रीच आउट किया इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, अलुमनाई रिलेशंस को भी, मतलब गूगल फॉर्म पे रीच आउट, आईडी में स्टोरी डाली, उससे भी पता चला कि लॉट ऑफ पीपल आर वंडरिंग व्हाट दे वांट टू डू इन लाइफ, व्हिच इज व्हाई आई एम स्पेशली कवरिंग दिस टॉपिक. 2 अप्रोचेस होते हैं, हाउ डू यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू. उससे पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं. इकिगाई एवरीवन नोस, जापानीज फिलॉसफी फॉर लाइफ. क्या कहता है इकिगाई? वेन डायग्राम देख के बताओ, चारों का इंटरसेक्शन क्या है? व्हाट यू लव, जो तुमको पसंद है, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, जो दुनिया को चाहिए, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, जिसका तुमको पैसा मिल सकता है, एंड व्हाट आर यू गुड एट, जिसको तुम अच्छे. सबका इंटरसेक्शन इज इकिगाई. एंड अटेनिंग दिस, आई बिलीव अ लॉट इन इकिगाई. आई रेड दिस बुक बैक इन सेकंड ईयर, अप्लाइड इट बिग टाइम इन लाइफ एंड हैव रीड बेनिफिट्स आउट ऑफ दिस. 2 तरीके हैं इसको अटेन करने के. One is top down approach. क्या कहता है टॉप डाउन? हाई लेवल पे यू डिसाइड व्हाट मैटर्स टू यू. लोग मेनली क्या चाहिए? When they don't know what they want, they look for high level things what they want. पैसा, पावर, अटेंशन. इसके अलावा कुछ भी. Anything else you can think of? इतना ही चाहिए. इसका कॉम्बिनेशन 7 पॉसिबिलिटीज है. तीनों चाहिए, एक चाहिए, 3 में से कोई भी 2 चाहिए एडवांस. 7 possibilities are there. उसी पे you have to decide करो high level पे what is it that you want. Try 100 different things which can help you attain that. ठीक है, चलो एग्जाम्पल लेते हैं. पैसा चाहिए मेरे को, बहुत तरीके. स्टॉक मार्केट में घुस सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर सकते हैं, कंसल्टिंग, फाइनेंस, MBA, बिजनेस खोल सकते हैं, का अनेक तरीके. बट what hooks you the most? Start वहाँ से करो. Jot down all those things. Start with where you want to get your hands dirty from. And really really important, छोड़ो मत उस चीज़ को जो भी परस्यू कर. See it through the end. ये नहीं करके डिसएडवांटेज आपको ये मिलता है ना कि जर्नी भी देख लो मेरी.
राइट टू लीड मैंने छोड़ा बिकॉज देयर वाज नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, रिसर्च पेपर छोड़ा बिकॉज देयर वाज नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, बुक मैंने छोड़ी क्योंकि अगेन देयर वाज नो लाइट। जब तक मेरे को ये फीलिंग हुआ ना कि यार इसमें फर्दर प्रोग्रेस पॉसिबल ही नहीं है, तब तक मैंने वो परस्यू किया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। आई फेल्ड बिग टाइम इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई गेव अप व्हेन आई डिड नॉट फाइंड एनी वे टू प्रोसीड, देन यू अटेन इट अगेन। बट दिस इज एन अप्रोच व्हिच आई डोंट फॉलो, आई हैवंट फॉलोड सो फार। अब मैं ये बताता हूँ, ये काम करता है बेहतर, दिस हैज वर्क फॉर पीपल हु आई हैव बीन इन टच विद लेटली। बट और एक तरीका ये करने का, बॉटम अप, उल्टा, कि यू जस्ट जॉट डाउन इकिगाई कहाँ से मिलता है, figure out those factors, figure out those ways, figure out those professions and businesses which help you attain all of these tried and tested तरीके जो भी है, try 100 of them, again don't give up on something until it gives up on you, and granularity फिर तुमको समझ में आएगी कि यार ठीक है मैंने इतना कुछ ट्राई किया, यहाँ से स्टार्ट किया, now renewable energy is the domain I'm interested in, that took me and I pursued that। थोड़ा सा हाई फंडू चीज़ है, I understand, average एज की maximum फर्स्ट ईयर है यहाँ पे, 17-18 years आपकी एज है, मे बी इट्स स्लाइटली टफ टू फिगर इट आउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस स्लाइड, आई हैव सिंप्लीफाइड इट फॉर यू। अगर इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया, सब भूल जाओ, जस्ट फोकस ऑन दिस। गट फीलिंग जो है ना, उसको इग्नोर मत करो, यू विल कीप गेटिंग दीज साइंस अगेन सम और द अदर वे, यार मेरे को ये करना है, मेरे को इसकी चुन है। एक है ना गुजरात में कंसेप्ट चलता है, दिस फेमस अमंग लॉट ऑफ बिजनेस कम्युनिटीज, 1000 दिवस बोलते हैं उसको, 1000 days, to give 1000 days to whatsoever you love, then see what is the outcome। जान डाल दो 1000 दिन 3 साल, फर्स्ट ईयर वाले मैक्सिमम है 4 साल है, सेकेंड ईयर वाले 3 साल है, थर्ड फोर्थ ईयर वाले जल्दी फिगर आउट कर लिया, तुम्हारी किस्मत है, 1000 दिन नहीं लगेंगे। तो figure that out, what your heart is telling you to do, and validate it through your brain। 5 Isaac technique होती है to validate things। Anyone knows what it is? 5 Eyes पता है किसी को? No one knows। 5 Eyes ये कहता है कि you want to pursue anything, तुम खुद से पूछो भाई। साइमन सिनेक पता है सबको? साइमन सिनेक इज अ बिग ऑथर, स्पीकर, उस टाइप का बंदा, उसने बुक लिखी है स्टार्ट विद व्हाई। I have not read that book, but something around that book, so we're sharing। 5 बार खुद से पूछो why do I want it। मैंने खुद से पूछा था why do I want to get into the renewable energy domain when my heart told me कि हाँ renewable में घुस गया। आंसर क्या आया, मेरे को वैल्यू ऐड करनी है। Renewable energy as a business has a lot of potential to add value in the society, a lot of potential to add value in people, and ultimately contributes to sustainability, all of that। क्यों ये करना है? Because I have tried and tested things in the past, right to read है या research paper है या book है या कुछ भी है, and that has eventually helped me figure out कि यार क्या क्या नहीं करना है। Now I know क्या करना है। And finally I decided कि why did these things fail? Because primarily passion पता नहीं था मेरे को, whatever passion था, and मेरे को दिल से आवाज आ रही थी renewable pursue करो, तो I did it। Another example, quick example, almost we have to wrap it up। मेरा एक दोस्त है, बैचमेट है, उसके साथ में बैठा था around Feb last year। He was also at Deloitte, he spent like 2 years at Deloitte। पुणे में जब रह रहा था तो फाइनल डेज को मीन उसमें 2 महीने वो आया था ऐसे ही मिलने। इसलिए यार कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, ये वो तेरे साथ बैठता हूँ, ऐसे डिस्कस करते हैं, हाई करते हैं। We were just batchmates back then। हमको है ना कोई वैसा ऐसा नहीं लगे एक्सेप्शनली अच्छा बॉन्ड है ऐसा कुछ, बस बैचमेट्स थे। आया, बातचीत करी, इधर उधर घूमने गए, पूछा उसको हाँ यार बता क्या कंसर्न है, करते रहते हैं ऐसी बात है। तो इज लाइक यार मेरे को प्रोडक्ट में घुसना है, तो फिर आप में से कुछ लोगों ने बोला प्रोडक्ट में घुसना है, इज लाइक प्रोडक्ट मैनेजमेंट सीखना है। ठीक है कर, केस स्टडीज पढ़ता था, कोर्सेज अटेंड करता था, लोगों से मिलता था। 3-4 दिन ऐसे ही किया उसने, मैं रोज उससे पूछता है क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, तो ये केस पढ़ रहा हूँ, किताबें पढ़ रहा हूँ। देन आई आस्क्ड हिम वन डे कि यार क्यों कर रहा है प्रोडक्ट? इसलिए यार पैसा है, बड़ी कंपनीज के साथ काम करने मिलेगा, प्रॉमिसिंग फील्ड है, इसलिए पोटेंशियल अच्छा है, एंड
D2C मार्केट में मेरे को इंटरेस्ट है, इसलिए मैं प्रोडक्ट बनाऊँ एंड वैल्यू एडिशन बहुत सारा है. योर प्रोडक्ट इज द वे फॉर कंपनीज टू स्केल. बेसिक साइंस बोला यार ऐसे तो बहुत तरीके which help the companies to scale. It's not just that product ही एक चीज़ है which help companies to scale. देखो पैसा चाहिए, पैसा कमाने के बहुत तरीके हैं, ये companies want to scale, उसके भी बहुत तरीके हैं. Whatsoever you said, there are a lot of domains which can help you do that. Product क्यों? No answer. He did not have any answer for this. मैं उसको बोला 2 दिन ले. Tell me after 48 hours. It's like 12:30 AM. रात को एकदम वो कॉलेज वाला क्या है वो गया नहीं था, कीड़ा की सब रात को ही ऐसी काम की बातें सोचती है, दिन में नींद में रहता है. तो this thing happened. उसको बोला रात को this is around like 20:30 AM. We were sitting on the car on the fair. मैं उसको बोला 24 you take 48 hours you get back to me. What is it that you want to do? देखो दिल से क्या आवाज़ आ रही है. 2 days later we sit on the same couch and discuss what he wants to do. क्या बोलता है मेरे को, प्रत्युष बिजनेस सीखना है, धंधा समझना है. बोला तो प्रोडक्ट क्यों करना है? गेट नो आंसर. बोला तो धंधा सीख, प्रोडक्ट क्यों सीख रहा है भाई? एक्सपोजर चाहिए ना. ज्वाइन अ स्टार्टअप विच गिव्स यू एम्पल अमाउंट ऑफ एक्सपोजर. तेरे को जो भी डोमेन्स में चाहिए, 1 साल लगा 2 साल लगा, कुछ बड़ी बात नहीं है. 50 साल का करियर है तेरा, रफली 40-50 साल के लिए 2 साल उसमें से तुम निकालो 4% रोकना है, दैट इज अर्निंग ऑफ एरर. 4% ऑफ टाइम इन्वेस्ट कर दो यार, ठीक है इतनी सारी चीज़ों में. देन यू नैरो डाउन. इज लाइक ओके, सही बात है, मेक सेंस. 4 to 5 months later he joined a startup in Gurgaon. He's still there doing outstanding work. बहुत बड़े बिजनेस मीडिया हाउसेस उसका काम पब्लिश कर रहे हैं. वो खुद आज लिंक्डइन पे काफ़ी सारी चीज़ें लिखता है. ही टेक्स नोट्स, राइट्स देम, बुक्स पढ़ता है, उसी के बारे में काफ़ी नॉलेज शेयर करता है, मेरे को भी भेजता है. एंड ही इज डूइंग रियली गुड वर्क. उसके 3 से 4 महीने डाउन द लाइन व्हाट हैपेंस, वही बंदा मेरे पास आता है, यार प्रत्युष वी सॉल्व अ बिग प्रॉब्लम बैक इन पुणे फेब में. ये सवाल अनेक लोगों को है दुनिया में, करना क्या है. तो ही टोल्ड मी कि यार प्रत्युष ऐसा कुछ शुरू करते हैं, लेट्स टेक एन इनिशिएटिव, लेट्स डू इट. बोला सॉरी साइंस ऑफ बैंडविड्थ इतना दे नहीं सकता टाइम. रिन्यूएबल एनर्जी इज माई गो टू थिंग. मैं आ नहीं पाऊंगा, बट अप्रिशिएट व्हाट यू आर डूइंग एंड तू कर. तेरे को जहाँ भी हेल्प चाहिए, आई एम देयर टू पिच इन. इट जस्ट मेड मी फील सो प्राउड एंड सो हैप्पी कि यार मैं किसी की लाइफ में इतनी वैल्यू ऐड कर पाया हूँ. सो मच वैल्यू कि इसको पता चल गया करना क्या है. दैट टू लाइक कितना 4-5 मंथ्स ऑफ टाइमलाइन है. 4-5 मंथ्स इज व्हाट 150 दिन. 150 दिन में इसको ये थोड़ा बहुत ग्रिड करके समझाया कि यार क्या करना है. You can also do it. Just do it with yourself. बिठाओ किसी अच्छे दोस्त को, बिठाओ किसी अच्छे मेंटर को, सपोर्ट सिस्टम जो मैंने बात की. Tell them to grill you. Tell them to ask what is it that you want to do it. Act straightforward. Simplifying things is on you. आप कॉम्प्लेक्स सोचोगे आपको कॉम्प्लेक्स समझ में आएगा, आप सिंपल सोचोगे आपको सिंपल समझ में आएगा. सब कुछ जो मैंने बोला उसका क्रक्स अगर मैं आपको बताऊं, लव व्हाट यू डू. जो भी कर रहे हो दिल से करो. डू व्हाट यू लव. जो दिल से निकल रहा है वो करो एंड एंजॉय द जर्नी. ये मत भूलना. पर्पस ऑफ व्हाटएवर यू आर डूइंग इज बेसिकली फिगरिंग आउट व्हाट यू वांट टू डू. पैशन है यार, व्हाटएवर प्रोफेशन यू वांट टू गेट इनटू, जो भी करना है. बट हैसल, एंजाइटी, डिप्रेशन, हसल, ये सब लाइफ नहीं होती है यार. सिर्फ मज़ा नहीं आएगा जीने में, मज़ा नहीं आएगा. यू विल मिस आउट ऑन बिग थिंग्स एंड वही ओवर अचीवर वाला हो जाएगा आपके साथ कि टाइम नहीं मिल रहा है खुद के लिए, दूसरों के लिए नहीं मिल रहा है, पैसे को चेस कर रहे हैं, इसको चेस कर रहे हैं, उसको चेस कर रहे हैं.